Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the exercise of chapter number 7. So let's start. So dear students, chapter number 7, Kingdom Protista, and the first question of our exercise is fill in the blanks. So question is, each question has 5 options and circle the correct answer. हमें नीचे 4 से 5 ऑप्शंस दी गई हैं हर एमसीक्यू के नीचे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नीचे, और उसमें से हमने जो सबसे करीब तरीन या फिर जो करेक्ट आंसर होगा उसको एनसर्कल करना है. सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स. एमसीक्यू नंबर 1, अमीबाज मूव एंड ऑब्टेन फूड बाय मीन्स ऑफ. तो हमने पढ़ा था इन प्रोटोजोन्स द यूनिसेलुलर एनिमल्स, उसमें जो फर्स्ट हमने उसकी सब क्लास पढ़ी थी, जो फर्स्ट सब डिवीजन पढ़ी थी प्रोटोजोन्स की, दैट वाज अमीबाई. तो अमीबाई के अंदर हमने एक कैरेक्टर पढ़ा था कि उनके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद एज दे आर एनिमल्स दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो हाउ डू दे मूव? और आपको याद होगा हमने बात की थी कि दे मूव बाय प्रोजेक्टिंग देयर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस. क्लियर? होपफुली आपको याद आ गया होगा. तो चलते हैं इनके ऑप्शंस की तरफ. Alpha option says Plasmodium, Beta option says Flagella, Charlie option says Cilia, Delta option says Pseudopodia, and Epsilon option says Gametangia. Dear students, so what is the correct answer? So hopefully आपने guess कर लिया होगा क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था. The correct answer is Delta option, that is Pseudopodia, which are the cytoplasmic extensions of the extensions. And why they are called as pseudopodia? Pseudo means false and podia means feet. तो जब वो मूव करते हैं तो अपनी उन प्रोजेक्शंस को आगे की तरफ ऐसे फैलाते हैं. when they stand still, the projections mean the pseudopodia, they go away. Clear? So that is why they are called as pseudopodia. Now the next MCQ number 2, it says the sexual process exhibited by most ciliates is called. तो ciliates में हमने पढ़ा था, ciliates ऐसे organisms जिनके अंदर जो organ of locomotion है, that is the cilia. इसी वजह से हमने उनको ciliates कहा था. और आपको याद होगा इसमें पैरामीशियम और स्टेंटर इनके हवाले से हमने बात की थी. तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो ज़्यादातर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आपको याद आ गया होगा. So alpha option is oogamy, beta option is binary fission, Charlie option is conjugation, delta option is fertilization, and epsilon option is zygote. So dear students, yes, you are right. The correct answer is Charlie option, that is conjugation. जिसमें जो cilia होते हैं, they come across each other, they come close towards each other and exchange their genetic material. MCQ number 3, it says parasitic protozoans that form spores at some stage in their life belong to which group? तो जितने भी हमने प्रोटोजोन्स पढ़े थे, उनके ग्रुप्स पढ़े थे, तो डियर स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसमें स्पोर्स बनते थे? तो आपको याद आ गया होगा, दे आर द एपिकम्प्लेक्सेंस. क्लियर? सो अल्फा ऑप्शन इज ciliates, बीटा ऑप्शन इज actinopods, चार्ली ऑप्शन इज diatoms, delta option is epicomplexans, and epsilon option is zooflagellates. So hopefully you have understood the correct answer is delta option, that says epicomplexans. उसमें हमने malarial लाइफ साइकिल पढ़ा था, आपको याद है. उसमें वो merozoites और sporozoites बनते हैं. These are the spores which are formed in this group. So the correct answer for MCQ number 3 is delta option, that is epicomplexans. Now another MCQ number 4 from our textbook exercise. It says algae which have shells composed of 2 halves that fit together like a petri dish belongs to. तो वो कौन से ऐसे जो algae थे जिसमें उनके जो सेल वॉल होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं और वो एग्जैक्टली इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर फिट होता है जैसे पेट्री डिश होती है. क्लियर? सो इसी वजह से तो उनको डायटम भी कहा जा रहा था. सो होपफुली आपको आंसर मिल गया. सो अल्फा ऑप्शन इज ब्राउन एल्गी, बीटा ऑप्शन इज डायटम्स,
Charlie option is euglenoids, delta option is green algae, and epsilon option is red algae. So the correct answer for this MCQ is beta option, that is diatoms. MCQ number 5, it says algae in which body is differentiated into blades, stipes and the holdfast or the basal holdfast belongs to. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एल्जी की मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज पढ़ी थी, उसमें डायाटम्स, उसमें डायनोफ्लैचुलेट्स, उसके अंदर हमने ग्रीन एल्जी, ब्राउन एल्जी, रेड एल्जी, तो किसके अंदर ये वाली करेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे? यस, यू हैव गेस्ड. सो अल्फा ऑप्शन इज गोल्डन एल्जी, बीटा ऑप्शन इज डायाटम्स, चार्ली ऑप्शन इज कैल्प्स, डेल्टा ऑप्शन इज euglenoids, and epsilon option is green algae. So the correct answer for this question, for this multiple choice question is Charlie, that is kelps, the largest, the giant algae. Clear? जो हमने बात की थी 70 meters तक इनकी लेंथ हो सकती है. MCQ number 6, it says chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids are found in. तो याद करें डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ कहाँ पे पढ़ी थी? तो euglenoids के अंदर भी मौजूद थी, ये वाले सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के अंदर भी हैं, उनके अंदर भी ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, और इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रीन एल्जी, द एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स. सो अल्फा ऑप्शन इज ब्राउन एल्जी, गोल्डन एल्जी एंड डायाटम्स. बीटा ऑप्शन इज ग्रीन एल्जी, golden algae and euglenoids. Charlie option is green algae, euglenoids and plants. And delta option is red algae, euglenoids and brown algae. Epsilon option is red algae, golden algae and plants. So dear students, the correct answer for this question, MCQ number 6, is Charlie option. That is green algae, euglenoids and plants. इनके अंदर ये तीनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होती हैं. और आपको याद होगा, आगे चलकर हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर. द मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, while chlorophyll B and carotenoids, they are the accessory photosynthetic pigments. Now, MCQ number 7, it says the feeding stage of a slime mold is called. तो हमने पढ़ा था ये second last topic, that is last and उससे पीछे स्लाइम मोल्ड्स और ओमाई वाटर मोल्ड्स, उसमें हमने डिस्कस किया था. इन द स्लाइम मोल्ड्स याद होगा आपको, तो उसमें जो in the feeding stage of slime mold is called option alpha is mycelium, option beta is pseudopodium, option Charlie is hyphae, option delta is plasmodium and epsilon is rhizoids. So the correct answer for this question is D or delta option, that is plasmodium. The feeding stage of plasmodium, feeding stage of slime mold is called plasmodium, जो कि एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस होता है और इसका साइज तकरीबन 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट के बराबर. नाउ द लास्ट MCQ नंबर 8, इट सेज सेल वॉल इन oomaceae इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट यानी कि वाटर मोल्ड्स और स्लाइम मोल्ड्स, इनको फंजाई के ग्रुप में से क्यों निकाला गया था? क्योंकि उनमें से सबसे दो मेजर रीजन्स थी, दो मेजर रीजन्स. एक तो फंजाई के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं हैं, जबकि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट इन दोनों के अंदर मौजूद हैं. दूसरा चीज़ कि इनकी जो सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनती है, जबकि इन दोनों की सेल वॉल दैट इज मेड ऑफ सेलुलोज. क्लियर? सो यहाँ पर सेल वॉल के हवाले से ही क्वेश्चन है. oomaceae के अंदर या oomacotes के अंदर जो सेल वॉल है उसमें कौन सा केमिकल मौजूद है? सो ऑप्शन अल्फा इज सेलुलोज, option beta is chitin, option Charlie is proteins, option delta is lignin, and option epsilon is proteins and some carbohydrates. So I have answered already. The correct answer for this question is question number 8, MCQ number 8 is alpha option, that is cellulose. Now question number 2, the short questions. So write 2 characteristics of each of the following groups. तो नीचे 5 ग्रुप्स दिए गए हैं, उनके हमें दो करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं. क्लियर? सो द फर्स्ट वन इज प्रोटोजोआ. सो प्रोटोजोन्स, डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था, दे आर द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स एंड
all protozoans are unicellular, clear, and they mostly ingest their food by ingestion like the animals, clear, and they lack cell walls. They lack cell walls. Now, the second one is dinoflagellates. तो dinoflagellates mostly unicellular, और इनके अंदर भी they are often covered by the cells of interlocking cellulose plates, clear, or which are impregnated with silicates. और याद होगा ये unusual ये प्रोटिस्ट हैं और ये रात के वक्त ग्लिटर करते हैं। आपको वो सारी डिटेल समझाई थी, याद आ गया होगा आपको, क्लियर। सो ये रात के वक्त इनके अंदर वो ल्यूमिनेसेंस मौजूद है, ये रात को चमकते हैं, ऐसा लगता है जैसे समंदर के अंदर तारे उतर आए हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डाई एटम्स। सो डाई एटम्स, डाई मीन्स टू, तो इनकी जो सेल वॉल है वो दो पार्ट से मिलकर बनी है और वो इस तरह से बने हुए हैं कि दे फिट टुगेदर जस्ट लाइक अ पेट्री डिश, क्लियर। और डाई एटम्स दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, आपने पढ़ा था। और उसके बाद दूसरे नंबर पर डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, क्लियर। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि दे आर द प्रोड्यूसर्स सेकेंड आफ्टर द डाई एटम्स, एंड बिकॉज डाई एटम्स दे आर एट द टॉप लिस्ट। फोर्थ वन इज स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स दे उनकी जो फीडिंग स्टेज है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। इट इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस और इसका साइज़ कितना होता है, तकरीबन 1 फुट के बराबर, यानी कि 30 सेंटीमीटर। और इसके अंदर दे इंजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक मैटर वट एवर इट इज़ कमिंग इन देयर वे व्हेन दे आर क्रीपिंग, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। दे फॉर्म दैट नेटवर्क ऑफ चैनल्स, क्लियर। सो दैट इज़ द स्लाइम मोल्ड्स। नाउ द ओमाइकोट्स और ओमाइसीड्स जिनको कहते हैं, या इनको वाटर मोल्ड्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड ऑफ सेलुलोज नॉट काइटिन, नंबर 1। और ये दे शो वेरी क्लोज रिलेशनशिप टू द ट्रू फंजाई। लेकिन जो ये बेसिक डिफरेंस है कि जो ट्रू फंजाई है उनके अंदर सेलुलोज नहीं बल्कि काइटिन है। इनके अंदर एक तो ये डिफरेंस आ गया इन दिस ग्रुप ओमाइसीड्स, और दूसरा कि इनके अंदर वो सेंट्रियोल्स का डिफरेंस आ गया। इसी वजह से एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो ये कहते हैं कि ये ज़्यादा करीब हैं, ओमाइसीड्स या ओमाइकोट्स और वाटर मोल्ड्स, दे आर द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द फंजाई। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ किंगडम फंजाई। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।